ہم نے مدراسی گیریزن کمانڈر میجر اچاری کے بنگلے پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ مدراسی میجر عیاش طبع تھا۔ پوشالی پر اس کی خاص نظر عنایت ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ بھی دوسرے نوکروں کی نسبت امتیازی سلوک کرتا تھا۔ میرا کام بنگلے کے چھوٹے سے باغیچے کی دیکھ بھال کرنا تھا۔ پوشالی بنگلے کے کمروں کی صفائی کرواتی، اپنی نگرانی میں میجر کا کھانا وغیرہ تیار کرواتی اور اس کے بیڈ روم کی دیکھ بھال کرتی۔ میں شام کے وقت اپنے کوارٹر میں آ جاتا، جبکہ پوشالی دیر تک بنگلے پر ٹھہرتی۔ یوں ایک ہفتہ گزر گیا۔ اب ہم نے اپنے منصوبے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ پوشالی نے مدراسی میجر کو خوابوں کی ایک ایسی دنیا میں پہنچا دیا کہ وہ اس کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ وہ مدراسی میجر کو خود شراب بنا کر پیش کرتی، اور جب مدراسی میجر سرور کی دنیا میں پہنچ جاتا تو پوشالی اس سے اپنے مطلب کی معلومات حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیتی۔ یہ کام وہ اتنی ہوشیاری اور عقل مندی سے کرتی کہ مدراسی میجر کو نشے میں کسی قسم کا شک نہ ہوتا۔ 15-20 دنوں کے اندر ہم نے مدراسی میجر سے وہ تمام معلومات حاصل کر لی جن کی ہمیں ضرورت تھی۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ گیریزن کا ایمونیشن ڈپو گیریزن کے باہر ایک زمین دوز ڈمپ میں ہے، اور وہاں بھاری مقدار میں بارود اور ایسے انتہائی طاقتور پینسل بم موجود ہیں جن کی مدد سے پہاڑیوں کو اڑایا جا رہا ہے۔ ہمیں ان ٹائم بموں کی ہی ضرورت تھی۔ دوسری طرف میں نے مدراسی میجر کی عنایت خاص کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈیم میں گھوم پھر کر اس کا پوری تفصیل سے جائزہ لیا۔ ڈیم کے بجلی گھر میں لگے ہوئے جنریٹروں اور سرنگوں کے ٹربائن کو تباہ کرنا بیکار تھا۔ اگر ہم ڈیم کو 3 جگہوں سے اڑا دیتے ہیں تو سارے کا سارا ڈیم مسمار ہو جاتا اور اسے دوبارہ تعمیر کرنے میں ایک لمبی مدت درکار ہوتی۔ یہی ہمارا مقصد تھا۔ ڈیم کا جائزہ لینے کے دوران میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر ہم کسی طریقے سے ڈیم کی نمبر 1، نمبر 3 اور نمبر 5 سرنگوں کے اندر چھت کے ساتھ طاقتور ٹائم بم لگانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ ڈیم مسمار ہو سکتا ہے۔ اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں ایک رات دیر تک بیٹھے اسی نقطے پر غور کرتے رہے کہ تینوں سرنگوں کے اندر ٹائم بم لگانے کی کیا ترکیب ہو سکتی ہے۔ ایمونیشن ڈمپ سے بم نکال کر لانا ہمارے لیے اب زیادہ مشکل نہیں رہا تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ رات کو ایمونیشن ڈمپ کے باہر صرف ایک سنتری پہرا دیتا ہے، اور اسے قابو کرنا میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ سب سے مشکل مرحلہ سرنگوں میں ایک ساتھ ٹائم بم کو لگانا تھا۔ ایک روز میں نے مدراسی میجر سے کہا کہ ڈیم کی کھدائی کرانے کے بعد سرنگوں میں سے جو مٹی نکلی ہے وہ باغیچے کے گلابوں کے لیے بہت مفید ہے۔ میجر کو پھول پودوں کا بہت شوق تھا، چنانچہ وہ مجھے اپنے ساتھ آفس میں لے گیا اور اس کی خاص اجازت سے سرنگوں میں جا پہنچا۔ وہاں سے مٹی پلاسٹک کے تھیلے میں بھری اور دیکھا کہ ان سرنگوں میں بھی کچھ کام ہو رہا ہے۔ ہر سرنگ میں ایسے مچان بنے ہوئے تھے جن پر کھڑے ہو کر کاریگر چھت کی فنشنگ اور ویلڈنگ کا کام کرتے تھے۔ یہ بات طے تھی کہ مجھے اور پوشالی کو اپنی جان خطرے میں ڈال کر رات کے وقت سرنگ نمبر 1، 3 اور سرنگ نمبر 5 میں بم لگانے تھے۔ دوسری کوئی ترکیب وہاں قابل عمل نہیں تھی۔ چنانچہ اس رات جب پوشالی مدراسی میجر کو سلا کر کوارٹر میں آئی تو میں نے اس سے مشورہ کیا، اور اگلی رات میں نے ایمونیشن ڈپو میں جا کر مطلوبہ ٹائم بم حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز دن کے وقت جنگلی گلاب کی قلمیں تراشنے کے بہانے میں ایمونیشن ڈمپ کی طرف گیا اور ارد گرد کا جائزہ لے کر واپس آ گیا، اور پھر رات تک اپنے کاموں میں مصروف رہا۔ رات کے 11 بجے تو چاروں طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ پوشالی ابھی تک مدراسی میجر کے بنگلے سے واپس نہیں آئی تھی۔ اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اگر اسے دیر ہو جائے تو میں اپنے مشن پر چلا جاؤں۔ جب رات کے 12 بجے تو میں نے زہریلا سیگار اور ماچس جیب میں رکھی اور کوارٹر کا دروازہ کھول کر دوسری جانب سے نکل کر ایمونیشن ڈمپ کی طرف چل پڑا۔ درختوں میں اندھیرا اور وادی سنسان تھی۔ میں نے ایک ہاتھ میں لکڑی کا چھوٹا سا ڈنڈا پکڑ لیا تھا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا یوں آگے بڑھ رہا تھا جیسے کسی جانور کی تلاش میں ہوں۔ ایمونیشن ڈمپ کے باہر بتی چل رہی تھی۔ ڈوگرا سنتری پہرے پر کھڑا تھا۔ اس نے درختوں میں میرے پاؤں کی آہٹ سنی تو رائفل تان کر چوکس ہو گیا۔ میں جلدی سے اس کے سامنے آ گیا اور ایک جگہ سے جھاڑیوں میں ڈنڈے کو مارتے ہوئے کہا، ایک کالی بلی روز آ کر ہمارا دودھ پی جاتی ہے، آج میں اسے پکڑ کر ہی رہوں گا، ابھی میرے کوارٹر گارڈ سے نکل کر ادھر بھاگی ہے۔ ڈوگرا سنتری بولا، رات کے اندھیرے میں بلی تمہیں نہیں ملے گی، جا کر سو جاؤ، صبح دیکھ لینا۔ میں جھاڑیوں اور اونچی گھاس والے گڑھوں میں فرضی بلی کو تلاش کرتا ڈوگرا سنتری کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ظاہر کیا کہ میں سخت تھک گیا ہوں۔ میں نے کمبل کندھے پر لپیٹ رکھا تھا۔ گہری سانس لے کر کہا، اس حرامزادی بلی نے مجھے تھکا دیا ہے، اب آئی تو میجر صاحب سے پستول لے کر اسے گولی مار دوں گا۔ سنتری جانتا تھا کہ میں گیریزن کمانڈر کے بہت قریب ہوں۔ کھڑے کھڑے بولا، یار میجر صاحب سے کہہ کر میری دن کی ڈیوٹی لگوا دو، راتوں کو جاگ جاگ کر تنگ آ گیا ہوں۔ میں نے کہا، یہ کون سی مشکل بات ہے، میں صبح ہی میجر صاحب سے بات کروں گا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں کہا؟ اس دوران میں میری تیز نگاہوں نے آس پاس کا بھرپور جائزہ لے لیا تھا۔ وہاں ہمارے سوا کوئی نہیں تھا۔ دور میجر کے ڈرائنگ روم میں بتی جل رہی
थी। मैंने जेब से जहरीला सिगार निकाल कर सुलगा लिया और संतरी का आखिरी वक्त आ गया था। मुझे सिगार पीते हुए देखकर वो बोला, तुम सिगार भी पीते हो? मैंने माचिस फेंकते हुए कहा, हम मद्रासी बड़े शौक से सिगार पीते हैं। मद्रास में सिगार बड़े सस्ते मिल जाते हैं। मैं सिगारों का पूरा डिब्बा भर कर लाया था, अब तो बस थोड़े से रह गए हैं, कभी कभी पी लेता हूँ, तुम पियोगे? डोगरा संतरी बोला, नहीं भाई, मैं ड्यूटी पर तंबाकू नहीं पीता। मैंने सिगार के 2 कश लगाए। तीसरे कश पर आंच जहरीले महलूल तक पहुंचने वाली थी। मैंने तीसरा कश लगाया और उठकर डोगरा संतरी के सामने आ गया। देखो इसकी कितनी अच्छी खुशबू है। मैंने सिगार का 1 कश और लगाया और धुआं उसकी तरफ छोड़ते हुए सिगार का रुख संतरी के मुंह की तरफ करके सिगार को दरमियान से दबा दिया। सिगार के आंच वाले किनारे के ऊपर से मोहलक तरीन जहर की एक फुहार निकलकर संतरी के चेहरे पर पड़ी। मैंने उसे संभाल लिया, क्योंकि फुहार मुंह पर लगते ही वो बेहिस होकर गिरने लगा था। मैंने उसे लिटा दिया, गर्दन घुमाकर गैरिसन की तरफ देखा। चारों तरफ सन्नाटा छाया था। मैंने संतरी के दिल पर हाथ रखा। उसके दिल की हरकत बंद हो चुकी थी। मैंने उसकी जेब से चाबी निकाली और बैठे बैठे एमुनिशन डंप के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका ताला खोला, किवाड़ जरा सा एक तरफ किया और अंदर दाखिल हो गया। कपड़े का एक थैला मैंने अपनी कमर के साथ बांध रखा था। अंदर सीढ़ियां नीचे उतरती थीं। आगे एक खुला हॉल कमरा था जिसकी छत पर बल्ब रोशन था। हर किस्म का असलहा बड़े बड़े रैकों में करीने से लगा था। मैं उस रैक के पास आ गया जिस पर ताकतवर पेंसिल बमों के बक्स पड़े थे। जल्दी से थैला खोला। 18 पेंसिल बम बक्स में से निकाल कर थैले में डाले। थैले को दोबारा अपनी कमर के साथ बांधा। बक्स को वैसे ही बंद करके रख दिया और सीढ़ियां चढ़कर बाहर आ गया। संतरी की लाश उसी तरह जमीन पर पड़ी हुई थी। मैंने दरवाजा बंद करके ताला लगाया। धोती के पल्लू से ताले पर अपनी उंगलियों के निशानों को रगड़ा और चाबी साफ करके मुर्दा संतरी के पाउच में डाल दिया और दरख्तों की तरफ भाग गया। अपनी कोठरी में आते ही मैंने बम्मों वाला थैला कमर से खोला और उसे चारपाई के नीचे छुपा कर रख दिया। इस बात का बहुत कम इम्कान था कि सिक्योरिटी गार्ड को ये शुबा होता कि किसी ने ड्यूटी पर मौजूद संतरी को हलाक करके अंदर से एमुनिशन चुराया है, क्योंकि पहली बात तो ये थी कि मुर्दा संतरी के जिस्म पर जख्म का कोई निशान नहीं था। दूसरे एमुनिशन डिप्पू के दरवाजे पर ताला बदस्तूर लगा था और चाबी संतरी के पाउच में थी। गैरिसन का डॉक्टर भी मुआयने के बाद इसी नतीजे पर पहुंचा था कि संतरी की मौत हार्ट फेल हो जाने से वकूफ पजीर हुई है। इन हालात की रोशनी में नौकरों के क्वार्टरों की तलाशी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसके बावजूद मैंने फैसला किया कि सुबह होने से पहले पेंसिल बमों के थैले को क्वार्टर की दीवार की दूसरी तरफ झाड़ियों में छुपा दूंगा। पोशाली अभी तक नहीं आई थी। मुझे उसकी जरूरत भी नहीं थी। वो जो काम कर रही थी वो भी इंतहाई जरूरी था। मेरे क्वार्टर की बत्ती बुझी हुई थी। मैं चारपाई पर लिहाफ ओढ़ कर लेट गया। बमों का थैला मेरे चारपाई के नीचे पड़ा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। दूसरे संतरी ने सुबह 4 बजे आकर डोगरा संतरी की जगह संभालनी थी। 4 बजे संतरी की मौत का इल्म सबको हो जाएगा। मेजर को उसी वक्त जगा कर इत्तला कर दी जाएगी। ये मामला संगीन नौयत का था। हो सकता है कि मेजर नशे के तरंग में आकर ये ऑर्डर दे दे कि ये किसी तखरीबकार का काम है। फौरन इलाके को घेरे में लेकर तलाशी ली जाए। इस ख्याल ने मेरे अंदर तरह तरह के वसवसे पैदा कर दिए। मैं लिहाफ हटा कर उठ बैठा। मुझे थैला उसी वक्त झाड़ियों में छुपा देना चाहिए था। मैंने कोठरी का दरवाजा खोल कर बाहर झांका। बाहर सितारों की धीमी धीमी सर्द पहाड़ी रोशनी की धुंध सी फैली हुई थी। हर तरफ खामोशी थी। मैंने स्टूल पर चढ़कर दीवार की पिछली जानिब देखा। यहाँ एक गड्ढा था जिसमें कूड़ा करकट फेंका जाता था। उस गड्ढे के किनारे भी घनी झाड़ियां उगी हुई थी। मैं वापस कोठरी में गया। थैला चारपाई के नीचे से निकाल कर अपनी कमर के गिर्द बांधा और दीवार पर से दूसरी तरफ उतर गया। घास शबनम से गीली हो रही थी। सर्दी कड़ाके की पड़ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता सरकता हुआ गड्ढे में आ गया। किनारे की झाड़ियों में एक जगह पत्थरों को हटाकर थोड़ी सी जमीन हाथ से खोदी। थैले को उसमें रखा और ऊपर मिट्टी और पत्थर डालकर झाड़ियों की शाखें तोड़कर इस तरीके से डाल दी कि किसी को पता न चले कि यहाँ खतरनाक बमों का थैला दफन है। इस काम से फारिग होकर मैं फुर्ती से उठा और दीवार फांद कर अपने क्वार्टर में पहुंच गया। रात के 3 बजे के करीब पोशाली आ गई थी। मैं सो रहा था। उसने मुझे शाने से हिलाकर जगाया। मैंने आंखें खोल दी। पोशाली का चेहरा मुझ पर झुका हुआ था। उसके कपड़ों से आला किस्म के इत्र की खुशबू आ रही थी। उसने बेताबी से पूछा, क्या हुआ? मैं उठकर बैठ गया। जब मैंने उसे बताया कि मैं अपने मिशन में कामयाब लौटा हूँ तो वो इत्मीनान का सांस लेते हुए अपनी चारपाई पर लिहाफ में घुस गई। फिर बोली, बमों वाला थैला हमें वहाँ से निकाल कर किसी दूसरी जगह यहाँ से कुछ फासले पर छुपा देना चाहिए। मैंने कहा, ये काम तो कल रात भी हो सकता है। पोशाली जागी हुई थी। उसने मेरी बात का कोई जवाब न दिया और सो गई। बत्ती बुझी हुई थी। मैंने माचिस जलाकर टाइम देखा। 4 बजने में पौन घंटा बाकी था। 4 बजे संतरी की मौत का शोर मचने वाला था। मैं जागता रहा। जब घड़ी की सुई
सुइयों ने 4 बजाए तो मैंने अपने कान बाहर की खामोशी पर लगा दिए। एमुनिशन का डंप मेरे क्वार्टर से ज्यादा दूर नहीं था। अभी बाहर खामोशी छाई हुई थी। फिर अचानक बाहर से मुझे सीटी की आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही किसी ने बुलंद आवाज में किसी को आवाज दी। फिर भारी फौजी जूतों के दौड़ने की आवाजें आई। उसके बाद खामोशी छा गई। संतरी की लाश का पता चल गया था और शायद उसकी लाश को उठाकर ले जाया जा रहा था। मैं लिहाफ में दुबका बैठा रहा। थोड़ी देर बाद गैरिजन की जानिब से आदमियों की आवाजें बुलंद हुई। फिर खामोशी छा गई। उसके बाद कोई बुलंद आवाज नहीं आई। सुबह हो गई। पोशाली अभी तक गहरी नींद सो रही थी। मैंने उठकर पानी गर्म करके मुंह हाथ धोया, माथे पर तिलक लगाया और खुरपा लेकर बागीचे में आ गया। बंगले के गेट पर एक की बजाय 2 मुसल्लाह संतरी खड़े थे। मैं उन्हें प्रणाम करता हुआ अंदर दाखिल हो गया। मुझसे किसी ने कोई बात न की। इससे यही नतीजा निकाला जा सकता था कि संतरी की मौत को इत्तेफाकी मौत समझा गया है और मेजर को भी तकरीबकारी का शुबा नहीं हुआ, वरना अभी तक पूरी बटालियन लाइन हाजिर हो चुकी होती और मेजर बरामदे में खड़ा हुक्म जारी कर रहा होता। थोड़ी देर बाद मैं चाय पीने किचन की तरफ चल दिया। मेरा असल मकसद संतरी की मौत का रद्द अमल मालूम करना था। लांगरी बिहार का रहने वाला हवालदार गोपाल था। मैंने उसे प्रणाम किया और किचन के बाहर धूप में बैठ गया। गोपाल मेजर साहब के लिए नाश्ता तैयार कर रहा था। मेरी तरफ देखकर बोला, कृष्णम, तुम्हें पता चला कि रात को क्या हुआ? नायक रामदास ड्यूटी पर खड़े खड़े मर गया। मैंने हैरत के इजहार में अपना मुंह खुले का खुला रहने दिया। ये तुम क्या कह रहे हो गोपाल? रामदास तो कल बिल्कुल ठीक ठाक था। लांगरी ने चाय का कप मेरे आगे रखते हुए कहा, रामदास को सर्दी लग गई, ठंड से हार्ट फेल हो गया। बटालियन के डॉक्टर ने तो यही कहा है। परसों ही कह रहा था कि यार मुझे रात की ड्यूटी से बचाओ, मर गया हूँ रातों को जाग जाग कर। मैं बार बार हैरानी और अफसोस का इजहार कर रहा था। मैंने पूछा, बड़े साहब को मालूम हुआ क्या? लांगरी ने ट्रे में चीनी दान रखते हुए कहा, क्यों नहीं, साहब को तो सुबह जगाकर उसी वक्त रिपोर्ट कर दी गई थी। वो खुद ही रामदास की लाश लेकर डॉक्टर के पास गए थे। तुम बैठो, मैं साहब को नाश्ता देकर आता हूँ। वो नाश्ते की ट्रे उठाकर मेजर साहब के ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। मैं दिल में मुतमईन था। संतरी की मौत के बाद पैदा होने वाले इम्कानी और खतरनाक हालात का बोझ मेरे जहन से उतर गया। अब मुझे ये भी अंदेशा नहीं था कि क्वार्टरों की या जंगल की तलाशी ली जाएगी। इस बात की तस्दीक हो चुकी थी कि नायक रामदास की मौत हार्ट फेल होने से हुई है। मैं खामोशी से चाय पीता रहा। मजीद मालूमात पोशाली ही कर सकती थी। चाय पीने के बाद मैंने मग धोकर वहीं रखा और बागीचे में आकर फूलों के पौधों की यूं ही काट तराश करने लगा। निस्फ घंटे बाद मेजर साहब की जीप बंगले में दाखिल होकर एक तरफ खड़ी हो गई। बावर्दी ड्राइवर उतरकर किचन की तरफ गया। थोड़ी देर बाद मेजर भी ड्राइंग रूम में आ गया। ड्राइवर ने जोर से सैल्यूट मारा। मैं भी उठकर खड़ा हो गया और दूर ही से मेजर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और दिल में कहा, जाने से पहले तुझे अगली दुनिया में जरूर पहुंचाऊंगा। मेरा इरादा ऐसा ही था, मगर ये हालात पर मुनहसिर था। मेजर जीप में बैठकर चला गया। मैं बागीचे में ही धूप में बैठकर बीड़ी पीने लगा। 2 बजे मेजर वापस आ गया। उसके 15 मिनट बाद मैंने पोशाली को देखा। वो कंधों पर शॉल डाले क्वार्टर की तरफ चली आ रही थी। मेरे करीब से गुजरी तो एक नजर मुझ पर डालकर जरा सा मुस्कुराई और मेजर साहब के ड्राइंग रूम में दाखिल हो गई। सबको मालूम था कि पोशाली यानी भाग्या मेरी पत्नी है और मेजर साहब के यहाँ ज्यादा वक्त गुजारती है और उनकी मंजूर नजर है। इस वजह से गैरिजन के नौकर चाकर मुझे अच्छी नजर से नहीं देखते थे। सिर्फ लांगरी गोपाल ही मुझसे खुलकर बातचीत कर लेता था और वो भी किचन में तरकारी साफ कर रहा था। जिस चट्टान की खो में मैंने चमड़े का थैला छुपाया हुआ था, वहां से मैं 2 रिवॉल्वर और गोलियां निकाल कर ले आया और ये चीजें भी टाइम बमों के साथ थैले में पड़ी थी। उस रात पोशाली रात को जल्दी क्वार्टर में वापस आ गई। अब मैं मजीद ताखीर नहीं करना चाहता था। मैंने पोशाली से मशवरा किया और यही तय हुआ कि अगली रात मैं डैम की सुरंगों में बम लगाने निकल पड़ूं। दूसरे दिन मैंने बेशतर वक्त मेजर आचारी के बंगले पर गुजारा। पोशाली को उस रात 1 बजे तक वापस क्वार्टर में आना था। दिन के वक्त में एक बार फिर डैम की सुरंगों की तरफ जाकर उनका जायजा ले आया और जहन में वो जगहें अच्छी तरह बिठा ली जहां मुझे बम लगाने थे। ये काम आसान नहीं था। डैम के दोनों जानिब कड़ा पहरा होता था। मैंने नीचे की तरफ से सुरंगों में जाने का प्रोग्राम बनाया था। ये वो जगह थी जहां से सीमेंट के देव पैकर पाइप गुजरते थे। यहाँ एक जानिब सीढ़ियां ऊपर जाती थी। अभी ये जगह नामुकम्मल थी और सीढ़ियों के साथ वाली दीवार ऊपर तक नहीं उठाई गई थी। उस जानिब बेशुमार जंगली झाड़ियां उगी हुई थी। डैम के ऊपर रात को रोशनियां जगमगाती थी, मगर नीचे सीढ़ियां थी जहां अंधेरा छाया होता था। इसका जायजा मैं ले चुका था। मेरे लिए ये जगह मौजूद थी। प्रोग्राम के मुताबिक मैं 9 बजे रात अपने क्वार्टर में आ गया। जब रात जरा गहरी हो गई और गैरिजन की जानिब से फौजियों की कभी कभी बुलंद होने वाली आवाजें भी खामोश हो गईं, तो मैंने क्वार्टर की बत्ती बुझाकर मोमबत्ती जला ली और क्वार्टर की अकबी दीवार फांद कर झाड़ियों में आ गया। थैला वहां पत्थरों के नीचे मिट्टी के अंदर महफूज पड़ा था। थैले को लेकर क्वार्टर में वापस आ गया। हर सुरंग में मुझे 6-6 बम लगाने थे। ये पेंसिल की तरह के छोटे मगर इंतहाई ताकतवर बम थे और बड़ी बड़ी चट्टानों
को एक सेकंड के अंदर अंदर रेजा रेजा कर देते। मैंने उन्हें रुमाल में बांध कर अलग रख लिया था और पोशाली का इंतजार करने लगा। 1:45 बजे पोशाली आ गई। उसने बताया कि आज मेजर आचारी बेसुध पड़ा है और शायद कल दोपहर तक वो अपने होशो हवास में ना हो। मैंने एक रिवॉल्वर पोशाली को दे दिया कि वो अपने पास रखे। इस मिशन पर मैं अकेला ही जा रहा था। पोशाली के मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं थी। 10 मिनट बाद मैंने 18 बमों को स्वेटर की अंदर वाली सदरी की जेबों में रखा, साइलेंसर वाले पिस्तौल को पाजामे में छुपाया, सर पर रुमाल बांधा और अल्लाह का नाम लेकर क्वार्टर से निकलकर दालान में आ गया। पोशाली को मैंने हिदायत कर दी थी कि अगर मैं सुरंगों में पकड़ा जाऊं तो वो फरार हो जाए और दिल्ली में खलील के गैराज में पहुंचने की कोशिश करे। मैंने क्वार्टर की दीवार फांदी और रात की तारीकी में उस पगडंडी पर चल पड़ा जो ढलान पर से होती हुई नीचे डैम के तास की तरफ निकलती थी। अंधेरे में मेरे पीछे फौजी गैरिजन की रोशनियां अब मुझसे दूर हो रही थी। 2 फरलांग चलने के बाद मैं ढलान की तरफ गया। ऊपर कुछ फासले पर डैम की कतार में लगी रोशनियां झिलमिला रही थी। मैं झाड़ियों से गुजर रहा था। सितारों की धीमी रोशनी में मुझे अपना रास्ता तलाश करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। सीमेंट की बनी हुई वो तंग सीढ़ी आ गई जो ऊपर सुरंगों तक जाती थी। सीढ़ियों पर चढ़ने की बजाय मैं पहलू की जानिब से जंगली झाड़ियों में होकर ऊपर चढ़ने लगा। यहाँ घनी झाड़ियां उगी हुई थी और अंधेरा भी था। चढ़ाई चढ़ते हुए मेरा सांस फूल गया, मगर मैं रुके बगैर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता जा रहा था। डैम की रोशनियां करीब आ गई थी। मैं उनसे बचने के लिए झाड़ियों की दूसरी तरफ हटकर चलने लगा। कुछ देर बाद मुझे बड़ी बड़ी सुरंगों के खुले हुए तारीक दहाने नजर आने लगे। मुझे पहली, तीसरी और 5वीं सुरंग में बम लगाने थे। सबसे पहले मेरा टारगेट सुरंग नंबर 1 था। मुझे डैम के ऊपर सड़क पर जंगले के साथ साथ 2 संतरी चलते नजर आए। नीचे सुरंगों में कहीं भी पहरा लगाने की जरूरत महसूस नहीं की गई थी। ये मेरी खुशकिस्मती थी, वरना यह मिशन मजीद मुश्किल हो जाता। मैं सुरंग नंबर 1 की दाहिनी जानिब एक झाड़ी में छुप कर बैठ गया और आंखें फाड़ फाड़ कर उस दहाने को तकने लगा। वहां कोई नहीं था। जब मुझे यकीन हो गया कि सुरंग के आसपास कोई संतरी नहीं है और ऊपर जो संतरी पहरा दे रहा था वो सुरंग के अकबी हिस्से की तरफ चला गया है, तो मैं झाड़ियों में से रेंगता हुआ निकला और सुरंग के दहाने की तरफ चल दिया जो वहां से बमुश्किल 50 कदम के फासले पर था। मैं कोहनियों के बल रेंगता हुआ सुरंग के दहाने में दाखिल हो गया। पहले तो मुझे कुछ नजर न आया, फिर अंधेरे में मचान नजर आई जो सुरंग की छत तक गई हुई थी। अब मुझे बड़ी तेजी से अपने मंसूबे पर अमल करना था। मैं मचान पर चढ़ने लगा। ऊपर के तख्ते पर पहुंचा तो मेरा सर सुरंग की छत से टकरा रहा था। वहां खुदा जाने किस मकसद के लिए साथ साथ 4 गहरे सुराख किए गए थे। मैंने थैला अपने सामने मचान के तख्ते पर रखा और 6 के 6 बम निकाल कर सुराख के अंदर आगे करके छत के पत्थरों से इस तरह चिपका दिए कि वो दिन के वक्त भी बाहर से नहीं देखे जा सकते थे। इन 18 के 18 बमों की छोटी सुइयां मैंने एक साथ 12 घंटे आगे कर दी थी। इस हिसाब से इन बमों को दूसरे दिन दोपहर के 1 बजे के करीब फटना था। पहली सुरंग में बम लगाने के बाद मैं एक सुरंग छोड़कर तीसरी सुरंग में रेंगता हुआ घुस गया। यहाँ भी तामीराती काम के सिलसिले में एक मचान लगी हुई थी। इस मचान पर चढ़कर छत के सुराखों में मजीद 6 बम अंदर लगा दिए। 5वीं सुरंग में कोई मचान नहीं थी। मैंने अंधेरे में जायजा लिया। सुरंग के दूसरे दहाने की तरफ से मुझे एक सुतून सा नजर आया। मैं मेहराबी दीवार के साथ लगकर खिसकता हुआ उस सुतून के पास पहुंचा। ये सुतून नहीं बल्कि एक छोटी सी मचान थी जो छत से बहुत नीचे तक गई हुई थी। मेरे लिए बेकार थी। वक्त गुजर रहा था। मुझे वापस जाने की पड़ी थी। आधे से ज्यादा काम मुकम्मल कर चुका था, लेकिन 5वीं सुरंग में भी बम लगाने बहुत जरूरी थे। मैं छत तक नहीं पहुंच सकता था। मैं सुरंग की दीवार को आंखें खोलकर अंधेरे में देखने लगा। एक जगह मुझे सीमेंट के थैलों का ढेर दीवार के साथ लगा हुआ दिखाई दिया। यहाँ बम लगाया जा सकता था, मगर खतरा था कि सीमेंट की वजह से बम ज्यादा तबाही नहीं मचा सकेगा। मैं दीवार टटोलता आगे बढ़ा तो मेरा हाथ एक जगह दीवार के एक शगाफ के अंदर चला गया। मैंने गौर से देखा, यहाँ से दीवार की 2-3 ईंटें उखड़ी हुई थी। उसके अंदर काफी जगह थी। मैंने खुदा का नाम लेकर उस शगाफ के अंदर तीसरा बम भी पहलू में एक जानिब लगा दिया और एहतियात के तौर पर उसके ऊपर जमीन पर से एक छोटी सी ईंट उठाकर रख दी। इस काम से फारिग होते ही मैं वापस मुड़ा, सुरंग के धाने पर आकर लेट गया और कोहनियों के बल रेंगता हुआ सुरंग से निकलकर झाड़ियों की तरफ चल दिया। वहां से मैं दरख्तों में आ गया और ऊंची सूखी घास में से रेंग रेंग कर गुजरता शुमाल मशरिक की जानिब जो दरख्तों की छोटी सी तिलहटी थी वहां पहुंचकर रुक गया और घास में लेटा रहा। मैंने अपने मिशन के खैरियत से मुकम्मल हो जाने पर खुदावंद का शुक्रिया अदा किया और थोड़ा सा दम लेकर ऊपर से होता हुआ अपने क्वार्टर की दीवार के पीछे आ गया। फिर मैंने दीवार फांद दी और अपने क्वार्टर के आंगन में जा गिरा। यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने तीनों सुरंगों में बम लगा दिए थे। क्वार्टर में आते ही मुझ पर थकन तारी हो गई। छिली हुई कोहनियों का दर्द भी जाग उठा और जहाँ जहाँ गर्दन और बाजुओं पर मच्छरों ने काटा था वहाँ भी खारिश शुरू हो गई। लेकिन मैं अपनी कामयाबी पर इस कदर खुश था कि इन बातों की तरफ मैंने कोई तवज्जो न दी। पोशाली जाग रही थी। उसने मुझे क्वार्टर के सहन में कूदते देख लिया था। उसने फौरन
कोठरी का दरवाजा खोल दिया। मैं अंदर आते ही बेदम सा होकर चारपाई पर लेट गया। जब मैंने उसे बताया कि मैं सारे के सारे बम महफूज मकामात पर लगा आया हूँ तो उसे यकीन ना आया। यकीन मुझे भी नहीं आ रहा था। कोठरी में मोमबत्ती जल रही थी। पोशाली ने थर्मस में से चाय निकाल कर मुझे दी। गरम गरम चाय पीकर मेरा जिस्म गर्म हो गया। फिर मैंने पोशाली से कहा, कल दिन में 1 और 1:30 बजे के दरमियान अगर मेरे लगाए हुए बम फट गए तो यहाँ तबाही मच जाएगी। पोशाली ने कहा, इसका मतलब है कि हमें सुबह होने से पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए ताकि हम बमों के फटने तक इस वादी से दूर जा चुके हों। मैंने पोशाली की तरफ देखते हुए कहा, मैं मद्रासी मेजर से तुम्हारी बेइज्जती का बदला लेना चाहता हूँ। पोशाली ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और आहिस्ता से बोली, इन बातों को भूल जाओ, समझ लो कि ये हमारे मिशन का एक हिस्सा था। बाहर अंधेरे और खामोशी में एक जीप तेजी से गुजर गई। हम एक दूसरे को तकने लगे। पोशाली ने जल्दी से मोमबत्ती गुल कर दी। ये कौन हो सकता है? मैंने कहा, ये सारा इलाका फौजी है, कोई सिपाही किसी काम से गुजरा होगा। हमारे कान बाहर लगे थे। उसके बाद गहरी खामोशी छा गई। पोशाली ने आहिस्ता से कहा, कहीं मेजर मर तो नहीं गया? आज मैंने पूरी बोतल उसे पिला दी थी। मैंने कहा, अगर वो मर भी गया है तो आधी रात को उसके बेडरूम में कोई नहीं जा सकता। किसी को क्या पता कि वो मर गया है। पोशाली ने सरहाने के नीचे से रिवॉल्वर निकाल कर अपनी कमीज के अंदर छुपा लिया और बोली, मेरा ख्याल है कि अब हमें एक पल के लिए भी यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। हमारा मिशन वैसे भी मुकम्मल हो चुका है। जरूरी तैयारी कर लेने के बाद हम कमरे का दरवाजा खोल कर सहन में आ गए। यहाँ से दीवार की तरफ गए। पहले पोशाली ने दीवार फांदी, उसके पीछे मैं भी दीवार फांद कर झाड़ियों में बैठ गया। हमने बैठे बैठे इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा और खामोशी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।